the kind of response that we got from season one was not something that we had thought that it would be received with such tremendous amount of love. Somebody like Nazneen, she exists or not? Tell me. मुझे ग्लैमरस मेकअप वेकअप दिया गया और मुझे ग्लैमरस नाज़नीन के अवतार में मुझे खड़ा कर दिया. मतलब भोकाल 2 इसका नाम है तो सारी चीजें डबल हो गई हैं पहले से तो इस बार. ओके. परफॉर्मेंस वाइज भी, हर कहानी वाइज भी. Hey everyone, welcome to Midday.com. And we have three very special guests today for Bhokal 2, Mohit Raina, Vidita Bagh and Pradeep Nagar. Firstly, guys, please tell us about your excitement for season 2. Season 1 received a great response. And what are you all expecting really? Actually, we all are excited, I guess. The kind of response that we got from season 1 was not something that we had thought that it would be received with such tremendous amount of love. I guess beginning में I guess because it was the COVID had just started and the lockdown had just started, so it kind of we crossed around 200 million views if I'm not wrong. So I guess expectation levels are high. First we were dealing with other people, now we are dealing with Deda brothers, Chintu Deda and Chintu Deda and Nazneen. So I think the thrill element is alive. I wish I could speak more about it, but yeah, we are very excited. I am very excited to see it on the 20th. How things have shaped up. Okay, and शौकीन मरा नहीं है, शौकीन जिंदा है. नाज़नीन उसे जिंदा रहेगी, रखेगी, शौकीन के खौफ को जिंदा रखेगी. शौकीन एक सोच है, सोच है, emotion. He's an emotion. And Vidita, we know that your character is going to come stronger, as much stronger than before. So please tell us about that. Like, what new do we expect from your character? It's very difficult to frame. Like, किस तरीके से different होगा, because story 2-3 महीने ही आगे बढ़ी है. Okay. And first season में जो देखते हैं कि she was like a shadow of Shaukin. She always stood by Shaukin. But Shaukin dies. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. तो शी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हर इनर स्ट्रेंथ. वो अपने गैंग मेंबर्स, अपने गैंग को संभालने लगती है, शौकीन के फैमिली को संभालने लगती है. शी डेवलप्स मोर नर्चरिंग क्वालिटीज इन हर. शी बिकम्स मोर ऑथोरिटी लेने लगती है, सब चीज कंट्रोल करने लगती है. ऑल्सो शी बिकम्स वेरी मैनिपुलेटिव, क्योंकि उसे मालूम है कि सही मतलब सीधे चलोगे तो शायद जो चीजें हैं वो नहीं हो पाएगा. टेढ़ा रास्ता ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि डेढ़ा जो है, डेढ़ा ब्रदर्स, चिंटू पिंटू डेढ़ा, ये लोग भी राइवल हैं. और इसका जो मेन एम है वो है कि सिकेरा से रिवेंज लेना, इसका जो है मेन मोटिव है. तो वो डेढ़ा ब्रदर्स से भी जाके मिलती है और अलग अलग प्लान्स बनाती है कि क्या करना है, नहीं करना है. तो है, बहुत कुछ है, बहुत लेयरिंग है इस बार इस कैरेक्टर में. And Pradeep, please tell us, you as well. I know y'all can't reveal too much, but whatever y'all can. सेम मतलब भोकाल 2 इसका नाम है तो सारी चीजें डबल हो गई हैं पहले से तो इस बार. Okay. परफॉर्मेंस वाइज भी, हर कहानी वाइज भी. और खासकर जो मेरा किरदार है, इसमें रंग बहुत है. इसमें ये रोमांस भी करता है, सेम टाइम पे रात को बात कर रहा होगा तो परिवार की जिम्मेदारी भी है, भाई से भी मोहब्बत है, चाचा के लड़के के लिए भी पता नहीं कि अच्छा ठीक है ये क्या, चलो पूरे मुजफ्फरनगर में आग लगा देता हूँ. सो अलग साइकी है, अलग चीजें हैं. सो बहुत सारे रंग हैं जिनको लेके मैंने कोशिश की है पिंटू डेडा के किरदार में कि मैं इसको पोर्ट्रेट कर पाऊँ. And we see the final product, but especially since your characters are inspired by real people, so what is the kind of prep that goes behind the scenes that we don't really get to see? So if you'd like to tell us a little about that as well. Well, I guess the prep happened very much in the beginning, when we started in 2019, if I'm not wrong, because that was the initial prep that was required for everyone to understand what kind of vision the director has and the show runners have. So I guess the initial prep for me, especially, I can only talk about myself, was to understand the thought, basically, understand the
intent of the person. So for me, it was to really understand the journey of a farmer's son, who goes on to be a IITian and gets a secured place in IAS, but he chooses IPS. So why would someone leave that kind of luxury, and why would someone leave that kind of comfort, and choose IPS? I guess that was the main thought behind understanding Sikera's mindset. So I guess, and I was lucky enough that I got to spend some time with Mr. Sikera as well. Okay. So I think I couldn't really adapt everything, each and every nuance of his personality, but I did take up I understood the larger picture of it, and that was my main homework, to understand the thought. So yeah, for me that was the main thing. Yeah, and Vidita and Pradeep as well. Yeah, for me, the writer, I asked them that somebody like Nazneen, she exists or not, tell me. उन्होंने कहा कि नाज़नीन, शायद नाज़नीन उसका नाम ना हो, बट ऐसे कोई औरत एक एग्जिस्ट करती थी, और शायद वो देखने में अलग हो, थोड़ा सा सिनेमैटिक लिबर्टी ले रहे हैं, थोड़ा सा ग्लैम एलिमेंट भी, ग्लैम पोर्शन भी होना चाहिए, तो होगी कोई नाज़नीन, बट उसे हम ग्लैमरस बना देते हैं और थोड़ा सा मसाला ऐड करते हैं, बट जो मेन ऐसी कोई कैरेक्टर थी, ये ब्रीफ था। अब ऑन स्क्रीन उसे जो है एक रूप देना, वो कैसे करें, है ना? तो उसके लिए जो डायलॉग राइटर्स, जो प्राइमरी जो कंसर्न होता है, अच्छे डायलॉग्स होना, है ना, सही पंचेस होना, एंटरटेनमेंट क्वोशिएंट होना, वो सब उन्होंने सही तरीके से लिखा। देन कॉस्ट्यूम वालों ने मेरे लिए जबरदस्त टाइट फिटेड कपड़े सिलवाए, मुझे ग्लैमरस मेकअप वेकअप दिया गया, और मुझे ग्लैमरस नाज़नीन के अवतार में मुझे खड़ा कर दिया, और मुझे भी वेट पुट ऑन करना था, वो किया मैंने, और मैं बंगाली हूँ तो मुझे थोड़ा सा उर्दू और वो जो अदाएं हैं फिर एक ठेठ हिंदी भी बोलते हैं ये लोग, वो भी मुझे सीखना पड़ा। बट हाँ, एक कैरेक्टर की साइकी को समझना ज्यादा जरूरी था मेरे लिए, कि नाज़नीन ऐसे क्यों है, और नाज़नीन क्यों नाज़नीन बनी। एक पढ़ी लिखी लड़की जो शौकीन के पास आती है, और शौकीन की बीवी भी नहीं है, फिर भी शौकीन के साथ हमेशा है, वो किस लिए ऐसा है, किस मतलब उसका क्या सेल्फ एस्टीम नहीं है, वो शौकीन की बीवी भी नहीं है, तो क्यों ऐसा है एक आदमी के साथ जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, शादी होगी नहीं होगी क्या मालूम, बट रह भी रही है, शादीशुदा, वो लिव इन रिलेशनशिप भी नहीं कह सकते उस टाइम पे, उस तरीके से लिव इन जो कल्चर है पॉपुलर भी नहीं था। तो ये सब क्यों एक औरत ये सब कर रही है, वो सब समझना मेरे लिए बहुत जरूरी था, और यहाँ एक्चुअल प्रिपरेशन होता है। या तो डायरेक्टर जतिन वागले उन्होंने काफी हेल्प किया, जो हमारे राइटर्स, काफी सारे राइटर्स थे, उसमें से सबसे ज्यादा इंटरेक्शन मेरा जिनके साथ हुआ, जय बंसल, उन्होंने भी काफी मदद किया। सो आप देख सकते हैं नाज़नीन का इम्पैक्ट ऑन स्क्रीन। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल, एक अजीबोगरीब घटनाएं हुई मेरे साथ, कि जब मैं पहुंचा वहां पे और मैंने रूल साइन किया, तो वहां पता चला कि मुझे सिद्धांत जी का बड़ा भाई का किरदार निभाना है, जो कि ऑलरेडी मेरे से 10 साल बड़े हैं। तो ठीक है, ओके, अब दिखने में भी, फिजिकली भी हम लोग सेम थे उस वक्त, तो ठीक है, क्योंकि एक मौका चाहिए अपने आप को प्रूव करने का, हम लोगों की लड़ाई ये है, ठीक है जी, करते हैं। उसके लिए फिर तैयारी करना शुरू करी, तो पता चला कि ये जो पिंटू डेढ़ा साहब है, ये पहलवानी भी करते हैं। चलो जी, अब एक्टर और पहलवानी का दूर तक लेना देना नहीं। मैंने सबसे पहले अपने प्रोड्यूसर साहब से एक रिक्वेस्ट की, जतिन वागले डायरेक्टर साहब से भी सेम टाइम, कि भाई आप मुझे साइन करके मेरा काम यहीं पे बता दो, हाँ या ना, कि ये फाइनल हो गया, तो मैं 3 महीने जाता हूँ, अपना वक्त खराब नहीं करता हूँ, रेसलिंग करता हूँ जाके। मैंने किसी को कॉल किया रेलवे खाड़े में, वहां मैं गया, वहां पहुंचा, और 3 महीने मैंने रेसलिंग शुरू करी और खाना पीना शुरू करा, और सब कुछ करके मैंने 20 केजी, 3 से 4 महीने में मैंने 20 केजी गेन किया वापस, और मुझे बढ़ाना चालू करे। तो ये तो हो गया कि ऊपर हो गए। अब सेम टाइम मैं बड़ा सॉफ्ट किस्म का आदमी हूँ, मेरा ये क्रूरता जो दिख रही है आपको स्क्रीन पे, इससे कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हाँ, भाषा जरूर मेरे लिए आसान थी, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ,
Okay. बट ये क्रूरता, ये सब चीजें लेके आना, ये सब करना, और अपने भाई से जिससे मैं 12 साल छोटा हूं उससे 12 साल बड़े दिखना, ये मेरे लिए बड़ा था। और उससे भी बड़ा जो पेंडेमिक ने कर दिया, मैंने सोचा था कि साल भर में हम लोग सब खत्म कर लेंगे, लेकिन ये सब जो सिलसिला है ये चला 3 साल के आसपास, 2.5 से 3 साल के आसपास। तो हुआ ये कि एक फिल्म मिली एज ए हीरो मुझे, मैं मनाली जाने वाला था कि 6 महीने रनिंग वनिंग करके मैंने 15 kg के आसपास मैंने किया खत्म, की सडनली कॉल आता है हरमन सर का कि अच्छा प्रदीप अपना करंट फोटो भेजो, हम लोग 3 महीने बाद शुरू कर रहे हैं भोकाल 2। अरे बाप रे, मर गए, अभी क्या करें। तो वापस से फिर खाया, सब कुछ छोड़ा, तो मैं 2.5 साल में सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट कर पाऊं, ये है आपके सामने जो मैं लेके आया। ये बिल्कुल अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जैसा हो गया। शशि कपूर भी अमिताभ बच्चन जी से काफी बड़े थे, बट उन्हें छोटा भाई बनाया गया था जी। And are you all a fan of crime dramas in real life as well, you know, as an audience as well? हाँ, मतलब क्राइम तो किसको अच्छा नहीं लगता मोस्टली, मतलब पर्सनली अगर मेरी राय है तो क्राइम अच्छा लगता है देखने में भी, करने में नहीं, देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। Of course, yeah. Okay. And you know, since the new year has just started, we have to also ask you, what are your hopes and wishes for the year? And Mohit, we have to congratulate you for your wedding as well, which you managed to keep secret. अरे बाप रे, हाँ मोहित भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शादी के लिए। आपका जीवन हमेशा खुश रहे आप, और जोड़ी ऐसे ही बनी रहे जिंदगी भर। थैंक यू भाई, थैंक यू। मेरी भी शुभकामनाएं हैं। But how did you manage to keep it private in this time where, you know, celebrities' lives are all over the place? Like, I mean, all well, it was, I've always been a private person, you know, I've always tried to keep my personal life away from the social circuit, because that's how I prefer it. So, and it was supposed to be, you know, a very personal and a very small thing, so which happened. So there was no major effort to, you know, keep it a secret or, you know, hide it from everyone. It wasn't, the effort wasn't towards it. The effort was to have a small function and make good memories. So I think we were able to achieve it. And as far as the New Year is concerned, you know, this year, I think I just wish good health for everyone. Yeah. 2022 should just be about everybody being safe, healthy. That's the most important part, because what pandemic has really taught us is that, you know, health is something we, especially as actors, you know, we always, like Pradeep bhai just said, you know, he for the project, he lost 15 kgs, he started running. You know, we as actors, and that's not normal, you know, because that's not normal. You cannot put so much pressure on your organs and your body, you know. So as actors, I think we always use our body a lot, you know, tool, emotions also and physically also. So I just hope and pray, you know, that everyone is safe in these tough times, and we just pass this phase, and then everything else will eventually fall in place, be it the work, be it any other thing. Health is, as they used to say, you know, health is wealth. Jaan hai to jahan hai. My for everyone is just to be safe. Yeah, and Vidita and Pradeep as well, your wishes for the new year, what are your hopes this year? सब लोग खुश रहे। एक ही चीज है जो मोहित जी ने बताया कि अपना सेहत का ध्यान रखना है, बिकॉज रेजोल्यूशंस तो हर साल हम लोग बनाते हैं, और कोविड ने सिखा दिया कि रेजोल्यूशंस का क्या होने वाला है फाइनली। तो कोई मतलब नहीं आप कितने प्लान्स बनाए, कुछ भी बनाए, होना तो वही है जो यूनिवर्स ने प्लान किया है वही होगा। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप अपने लिए बिल्कुल ना कोई प्लान बनाए। हेल्दी खाना खाइए, अपने सेहत का ध्यान रखिए, अपने मेंटल हेल्थ जिसकी बात कोई नहीं करता, वो बहुत जरूरी है। तो हो सके जितने ज्यादा आप किताबें पढ़ सके वो पढ़िए, अपने फैमिली के साथ जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं वो कीजिए, अच्छे मूवीज देखिए, और नेगेटिव थॉट्स जो है वो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। सारे नेगेटिविटी दूर हटा दीजिए, वही मेरा एडवाइस है और कुछ नहीं। All right, thank you so much guys, and best of luck of course for your show. Looking forward to it. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.